حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک انسان کے ساتھ اللہ نے 10 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے. 10 بندے دی سبحان اللہ بھی کوئی نہ ہی. ایک انسان کے ساتھ کتنے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے؟ 10 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے. تو پوچھا گیا کہ یہ فرشتے کہاں کہاں ہوتے ہیں؟ فرمایا 2 فرشتے کندھوں پہ ہوتے ہیں، ایک دائیں پر ایک بائیں پر. ان کا نام ہے کرامن کاتبین. یہ کرامن یہ کاتبین. فرمایا کہ یہ 2 فرشتے ہیں، ان دونوں میں سے یہ دائیں جانے والا فرشتہ یہ حاکم ہے بائیں جانے والے فرشتے پر. اب اگلی بات پر آپ کو اگر جی چاہے تو بولنا. فرمایا جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ نے اسے حکم دیا ہے کہ جب یہ نیکی کرے تو 10 گنا ثواب لکھنا ہے. عجب یہ آواز مٹھی ہے. اچھا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ تو اس فرشتے نے لکھنا ہے نا. یہ در منصور سے روایت سنا رہا ہوں. فرمایا جب کوئی گناہ کرتا ہے اور یہ فرشتہ لکھنے سے پہلے اس فرشتے سے اجازت مانگتا ہے کہ تو میرا حاکم ہے لکھ لوں، یہ کہتا ہے اجے نہیں لکھنا، ایک دن پورا انتظار کرنا ہے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے ہم اس کا ثواب عطا کر دیا جائے. اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ کوئی نہیں آئی ہے. تو اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انسان کو بخشنے کے لیے بڑے بڑے ذریعے اور سبب بنائے ہیں. اب انسان جرم کر کے توبہ نہ کرے تو یہ اس کی اپنی بدبختی ہے. تو فرمایا کہ یہ فرشتہ اس کو ایک دن کے لیے لکھنے کی اجازت یہ والا فرشتہ نہیں دیتا. یہ کہتا ہے ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ہے. جب ایک دن گزر جائے تو پھر یہ فرشتہ کہتا ہے افسوس اے بندے تجھ پر کہ تجھے کتنا اس رحمت کی جانب سے موقع دیا گیا لیکن تو نے موقع ضائع کر دیا ہے. انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. چونکہ لفظ انسان اس میں 2 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں لفظ انسان میں؟ 2 چیزیں ہیں. اچھا یہاں پر یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے جو میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں. گرامی قدر حضرات، اللہ نہ کرے کہ کوئی دنیا کی اس گندی محبت میں شکار ہو جائے. تو جو انسان ہوتا ہے اس لفظ انسان میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. پہلی محبت، انس سے انسان نکلا ہے. ہر انسان میں محبت ہوتی ہے، کس سے ہو جائے یہ بات کی بات ہے. اور دوسری بات، انسان نسیان سے بنا ہے. نسیان کا معنی ہوتا ہے بھول جانا. تو انسان اکثر بھول کر غلطی سے خطا کر بیٹھتا ہے. پر یاد رکھ لو انسان اگر محبت غلط کرے تو وہ انسان نہیں رہتا ہے، وہ جاہل بن جاتا ہے. اسی طرح اگر انسان بھول جائے اور اپنی بھول پر آکڑ جائے تو پھر بھی یہ انسان نہیں رہتا، یہ جانور بن جاتا ہے. خطا ہو جاتی ہے، جس سے خطا اور غلطی ہو جائے اور وہ اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہوتا ہے. اور جس سے غلطی ہو جائے اور وہ مان جائے کہ غلطی ہو گئی میرے باری تعالیٰ مجھے معافی دے دے وہ انسان ہوتا ہے. اب راستے دونوں تمہارے سامنے واضح ہو گئے. اب تعین آپ نے خود کرنا ہے کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. بات دور نہ چلی جائے. یہ 2 فرشتے فرمایا کل 10 ہیں تو ابھی تو 2 ہوئے ہیں باقی. فرمایا 2 فرشتے انسان کے، ایک آگے ہوتا ہے ایک پیچھے ہوتا ہے، جو اللہ کی رحمت کے ساتھ انسان کی حفاظت کرتے ہیں. توجہ ہے سب حضرات کی؟ اچھا یہ 4 فرشتے ہو گئے. پھر فرمایا 2 فرشتے اس کی آنکھوں پر ہوتے ہیں. جب یہ اچھی چیز اچھے منظر کو دیکھتا ہے تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں. تو جو نہیں فرما رہے آپ حضرات. مثال کے طور پہ اس نے مسجد کو دیکھا ہے، قرآن کو دیکھا ہے، والدہ کے چہرے کو دیکھا ہے، باپ کے چہرے کو دیکھا ہے. مٹھے پیندے جاندے ہو، مٹھے پیندے جاندے ہو. تو فرمایا یہ فرشتے خوش ہوتے ہیں، دعا دیتے ہیں. اور جب یہ بدبخت اپنی آنکھوں سے گند دیکھتا ہے تو پھر یہ بھی اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو آنکھیں اس لیے دی تھی یہ گند دیکھے، اس لیے آنکھیں نہیں دی تھی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے مثنوی شریف کے اندر لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں انسان کی جو غذا ہوتی ہے نا، فرمایا کہ وہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ بندہ منہ کے ذریعے سے کھائے لقمہ پیٹ میں جائے تو تب ہی یہ غذا ہے. فرمایا نہیں، بسا اوقات آنکھوں کے ذریعے سے بھی غذا اندر جاتی ہے. یہ بڑی صوفیوں والی گہری سی بات کہہ رہا ہوں، جو نئے آئے نا حضرات وہ ذرا توجہ فرمائیں. فرمایا بسا اوقات غذا بندہ آنکھوں کے ذریعے سے بھی لیتا ہے. کیسے؟
फरमाया जैसे हजरत बिलाल हबशी लिया करते थे। अगर समझ आई है तो फिर बोलो, वरना नहीं। हजरत बिलाल हबशी को भूखा भी रखता था उमैया बिन खलफ, तकलीफें भी देता था, मारता था, कील ठोकता था, अंगारों पर लिटाता था। इतना कुछ होने के बावजूद एक मर्तबा मुस्तफा का जलवा देखते सारी तकलीफें भूल जाया करती थी। तो क्या था? फरमाया उनकी गजा मुस्तफा का दीदार था। इस वास्ते फरमाया बस औकात कोई चेहरा बंदे को इतना पसंद आ जाता है, जब तक बंदा उसकी ज़ियारत न कर ले बंदे की रूह की गजा मुकम्मल नहीं होती है। समझ आई ना? आपने भी देखा होगा दुनिया दे टूटे हुए आशिक, टूटे आशिक समझिए आप, 2 नंबर है, नहीं तवज्जो फरमा रहे आप, हराम मोहब्बत करने वाले, ये बसाओकात किसी पर आशिक हो जाएं, ऐसे ही उसकी गलियों का चक्कर लगाते रहते, यहीं के बस एक झलक देख लूं। मैंने कहा किससे आंख लगा बैठा है? आंख लगा उससे कि जब तेरी आंख लग जाए तो मदीने वाले से लग जाए, फिर लुत्फ है ना। आंख उधर लगा इधर ना लगा। लेकिन बसाओकात सूफिया कहते हैं कि इंसान की गजा आंखों के जरिए से भी होती है, और वो मैं बता चुका हजरत बिलाल हबशी के जरिए से। मेरा ख्याल है एक ही मिसाल से समझ तो आपको आई गई होगी ना। अब जरा अगली बात सुनिए। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बाज़ औकात इंसान की गजा कानों के जरिए से भी होती है। अब आप कहेंगे कानों के जरिए का क्या मतलब है? मैं आपको एक और मिसाल इसकी अपने हिसाब से दे देता हूं। एक जुमे में ना आऊं ना तो मुझे कई बंदे फोन करते हैं, कारी साहब सवाद नहीं आया। क्यों नहीं सवाद आया? जेड़ा मौलवी मेरे तो पीछे आके जुमा पढ़ाया उन्हें कुरान नहीं पढ़िया? अगे पढ़िया है। हदीस नहीं पढ़ी? अगे पढ़ी है। ते मुड़ तेनू सवाद नहीं? मैं को नवी शह तो नहीं पिया पढ़ता, वही कुरान हदीस मैं पढ़ रहा हूं, वही आप पढ़ रहे हैं। आप कहते हैं तेरा सवाद आंदा, ओदा नहीं आंदा। क्या मतलब है? आपके कानों की जो गजा रब ने बना दी है वो ये बनाई है कि ये बंदा बोलेगा तो सवाद आएगा। समझ आइए कोई नहीं आई आप हजरात को? ये मैंने सिर्फ इसलिए मिसाल दिया कि ये अक्सर मुझे कहते हैं, एक जुमा मैं ना आ पाऊँ ना किसी मजबूरी की वजह से, वो कहते हैं कारी साहब सान तो लगता जिमें साल हो गया है। बल्कि वो हमारे दोस्त बैठे हैं, मैं वो रमज़ान शरीफ का पहला जुमा नहीं आया, कहता हूँ सानू रंडोड़ न करें चा। वो मैंने कहा यार ये आप क्या कह रहे हैं? आता मैनू हूँ रंडोड़ न करें, इतने अमदा रवी। मैं कह जी ताबेदार भाईजान, तो जितनी देर मेरा टुक्कर है वो तो मैं खाना ही खाना है। नहीं तवज्जो फरमाई आपने। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पंजाबी चादर निभदी रासी, बाकी जितनी देर होवे उतनी देर तक ही होती है। मैं कोशिश करूँ, आप करें, बाद में तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह के फजल से चलता रहेगा। मेरा कोई मूड नहीं दाएं बाएं जाने का भी, और जदों मेरा टुक्कर मुक जाना है उसलिए तुसी मिन्नतां भी करो तो मैं टुर जाना है। लेकिन अभी कोई मसला नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कहते मुझे बहुत हैं, लेकिन मैं आना तांदले वर्गा जौक दे हो चाहता मोड़ वेख ली सा है। समझ आ रही है? अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। तो बसा औकात इंसान की जो गजा होती है, फरमाया कि वो कानों के जरिए से किसी की बोली इतनी पसंद आती है कि वो कहता है उससे जो मर्जी करता रहे। वो आदा नहीं, जितनी देर तक ये ना सुनो, समझ आ रही मेरी बात की, उतनी देर तक मुझे लुत्फ नहीं आ सकता है। और ये कानों के जरिए से भी कईयों की गजाएं मुकम्मल हुई। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया, तवज्जो है सब भाइयों की दोस्तों की, आपने ऐलान नबूवत फरमाया तो जो काफिर थे ना वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मुखालफत करते थे। एक दिन ना काफिरों की औरतें मिलकर बैठी, उन्होंने कहा कि ये जेडे साडे बंदे नहीं ना सारे हो कि गया एवं दुश्मन बन गए ने, भाई ये जो मुहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने तो कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, न लड़ाई न झगड़ा। वो जब भी करते अच्छी बात, उनकी आदत और खसलतें बहुत अच्छी हैं। ए साडियां नूं की हो गया है? यानी उन्हांदियां जनानियां भी उन्हांदे मुखालिफ हो गई। उन्होंने कहा नहीं जी, आज इंज नहीं, आज ऐसे करती है मुसलमानों के नबी को देखती कहाँ बैठ के ये पढ़ता क्या है। अब हुआ क्या, वो जो काफिरा चंद औरतें थी ना, वो छुप कर नबी पाक अलैहिस्सलाम का जब कलाम सुनने लगी, यानी वो कुरान मजीद, उनके दिल पर इतना असर हुआ, उन्होंने कहा साडे बंदे जदों भी बोलते ने
उन्हां दी बोली दे नाल ते साडा दिलो दिमाग परेशान हो जाता है। केडी सोडी बोड़ी बोलदा बैठा है, ये मुहम्मद मुस्तफा के सिर तो लैके पैरों तक बंदे नूं सुकून मुयसर आई जाता है। तवज्जो है सब हज़रात की? कोई नहीं है जनाब। तो ये कानों के जरिए से जब उन्हें खुराक मिली, शाम के बाद काफरों के घरों के अंदर लड़ाई शुरू हो गई। हुण अपनी जनानी नाल केड़ा पंगा लवे? तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने। अच्छा, दो बंदे बड़े सीरियस बैठे सन, उन्हां दा भी हासा निकल गया। यार गल तो सच्ची की थी सू। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। भाई बेनज़ीर नाल केड़ा पंगा लवे, ते लेना चाहिदा भी नहीं। एवें नवें गड़े ते चढ़ जा सो फायदा। दोस्ताने गिरामी, इस वास्ते अब वो जब घर आए तो काफिर कहने लगे तुम्हें क्या हो गया है? उन्हें क्या साढ़े कोल आना तो बंदियां तरह आना है, तुहाड़ियां गल्लां सुन के ते साडा सिर पाटण नूं आ जांदा है। ओहदियां गल्लां सुनियां ना साडे तो साल साल दे दुख ही मुक गए ने। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका ये कमाल था। तो बसा औकात किसी की गुफ्तगू वो बंदे की ग़ज़ा बन जाती। और फिर बहुत सारी औरतों ने कलमा पढ़ लिया था इस वजह से। अब देखो, औरतों को समझ आ गई कि यार ये कलाम आम नहीं हो सकता है। मर्द दुश्मनी पर उतरे रहे, पर जिनके मुकद्दर में था वो दामन में आ गए, और जिनके मुकद्दर में नहीं था वो दामन में नहीं आ सके। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ये आंखें, ये कान, ये जुबान इसलिए नहीं है, बल्कि इन पर फरिश्ते मुहाफिज हैं। दो फरिश्ते यहाँ, दो आगे और दो पीछे। समझ आ रही? दो यहाँ, एक आगे एक पीछे, दो चार, दो अखी थे, कितने हो गए? 6। और फरमाया दो फरिश्ते तुम्हारे होंठ के ऊपर, एक ऊपर वाले एक नीचे वाले। करते क्या है? फरमाया जब दरूद पढ़ता है ना बंदा, तो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह इन होंठों को सलामत रखना जो तेरे मुस्तफा पे दरूद और सलाम पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली सुभान अल्लाह चाहिए मुझे। वो जो है फरमाया ये होंठ के ऊपर वाले होंठ पर अलग और नीचे वाले होंठ पर अलग। और जब कोई दुरूद पाक पढ़ता है तो फरमाया कि ये दुआ करते हैं या अल्लाह होंठों को सलामत रखना। ये आम फजूल बकबक करने वाले होंठ नहीं हैं, ये तेरे मुस्तफ़ा की ज़ात पे दरूद व सलाम पढ़ने वाले होंठ हैं। समझ आ रही? ये दुर्रे मंसूर के अंदर ये रिवायत मौजूद है हज़रत उस्मान गनी की मरवियात में से, जो आपको सुना रहा हूँ। और सिर्फ यहाँ तक बात नहीं, हज़रत उस्मान गनी, ये फरिश्ते हो कितने गए पहले ये बताएं जी? 2 रह गए। आ जाओ ना दुआ वेख लइए। फरमाया एक फरिश्ता अल्लाह ने पूरे चेहरे पर मुहाफिज बनाया हुआ है। समझ आ रही? पूरे चेहरे के ऊपर। और इसमें खास बात फरमाया तुम्हारे नाक और मुंह के अंदर कभी सांप को नहीं जाने देगा। तुम्हारे नाक और मुंह में कभी सांप को नहीं जाने देगा। फरमाया खासुल खास इसलिए तुम्हारे चेहरे का मुहाफिज है। 9 फरिश्ते हो गए, हुण 10वें दा भी सुनो। फरमाया 10वां फरिश्ता वो है जो इंसान के माथे पर है। और हदीस शरीफ के लफ्ज हैं, फरमाया माथे के बाल उसने पकड़े हुए हैं। जब कोई बंदा तकब्बर करता है तो ये यहां से सख्ती के साथ बालों को पकड़कर नीचे खींचता है और कहता है जालिम तकब्बर करते हो? तकब्बर सिर्फ रब की जात के लिए है, कोई और तकब्बर नहीं कर सकता। वो उसको पकड़ के नीचे की तरफ झटका देता है और मुसलसल वो बंदा दुनियादारों के सामने फिर जलील होना शुरू हो जाता है, जिसको तकब्बर की आदत पड़ जाए। और जो आजिज़ी करता है तो ये फरिश्ता अपने दोनों हाथों से इसका माथा ऊपर उठाता है और कहता है अल्लाह का हुक्म है कि जो आजिज़ी करेगा हम उसको बुलंद रुतबे अता फरमाएंगे। अब बात समझ आई? कोई नहीं आई आप हज़रात को? तो मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था, इलाहिन नास के तहत जितनी आजिज़ियां हैं ये सारियां की सारी अल्लाह के लिए हैं।